حکومت ہو گئی دو جہاں پہ کیا جب ان کی حکومت ہو گئی دو جہاں پہ کیا جب ان کی حکومت ہو گئی کیا علم کیا عرش و کرسی اور کیا لوح و قلم کیا علم کیا عرش و کرسی اور کیا لوح و قلم نام محبوب خدا کے ساری خلقت ہو گئی نام محبوب خدا کے ساری خلقت ہو گئی نام محبوب خدا کے ساری خلقت ہو گئی اس جہاں میں جس گھڑی مہکا نبوت کا گلاب اس جہاں میں جس گھڑی مہکا نبوت کا گلاب گلشن عالم میں پھر نکہت ہی نکہت ہو گئی گلشن عالم میں پھر نکہت ہی نکہت ہو گئی آ گیا مجھ کو نمازوں میں خیال مصطفیٰ آ گیا مجھ کو نمازوں میں خیال مصطفیٰ دل یقین میرے لیے میراث الفت ہو گئی دل یقین میرے لیے میراث الفت ہو گئی میں ہوں خوش قسمت مجھے تم سے محبت ہو گئی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی اللہم محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ شاہ عالم ہے علی کس سے ہو مدحت ان کی شاہ عالم ہے علی کس سے ہو مدحت ان کی راز حق راز محمد ہے حقیقت ان کی راز حق راز محمد ہے حقیقت ان کی مرحبا مرحبا قسمت سے میں ہوں پنجتنی مرحبا مرحبا قسمت سے ہوں میں پنجتنی ناز کی بات تو ہے ناز کی بات تو ہے مجھ کو ملی نسبت ان کی ناز کی بات تو ہے مجھ کو ملی نسبت ان کی ناز کی بات تو ہے رکھ دیا بات پہ سائل کے رہن بیٹوں کو رکھ دیا بات پہ سائل کے رہن بیٹوں کو ہے خدا ان کا ہے خدا ان کا نبی ان کے سخاوت ان کی ہے خدا ان کا نبی ان کے سخاوت ان کی شاہ عالم
ہے علی کس سے ہو مدحت ان کی شیر اجدا بھی علی فاتح خیبر بھی علی شیر اجدا بھی علی فاتح خیبر بھی علی کچھ نہیں پوچھئے کیا کیا ہے سجات ان کی کچھ نہیں پوچھئے کیا کیا ہے سجات ان کی شاہ عالم ہے علی کس سے ہو مدحت ان کی جاوید صاحب باواز بلند اتفاق پر اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد محترم سجاد نسیم حضور سید محسن رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر آپ کے بڑے بھائی محترم سید حسن صاحب، سید حسین صاحب، سید عامر صاحب، سید طاہر صاحب، اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و آل مصطفیٰ آل اطہر کے صدقے حضور پرنور حضور سید عبدالعزیز بابو رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کے موقع پر اللہ رب العزت سے بطور خاص اس گناہگار کی التماس ہے اس خاندان کی اولادیں ہمیشہ امت کے لیے مقام رحمت بنی رہیں۔ اللہ رب العزت کہ توفیق کے سبب اس گناہگار کو تھوڑی دیر کے لیے اجازت ہوئی ہے کہ حضور سید عبدالعزیز بابو رحمۃ اللہ علیہ کے ضد اعلیٰ جہاں سے تمام آل رسول وہ علوی ہو یا فاطمی اس شخصیت سے وابستہ رکھتی ہیں جس کا نام ہے حضرت ایمان حضرت عمران عرف عام میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کے نام سے جانی اور سمجھی جاتی ہے۔ اس گناہگار کی زبان اس لائق نہیں ہے کہ اس معزز اور مکرم ہستی کا ذکر اپنی زبان پہ لے آئے، لیکن مجبور ہے یہ گناہگار کہ جب ان کی کردار و عظمت تاریخ کی روشنی میں سامنے آتی ہے تو دل جو یقیناً دل ہوتا ہے وہ خواہ جو حضرت ابو طالب کے مخالف ہے وہ بھی مجبور ہو جاتے ہیں حضرت ابو طالب کے قصیدہ لکھنے میں اور آپ کی مدح سرائی کرنے میں۔ یہ گناہگار کچھ چند اثار جو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی یادگار ہے، جب ایک واقعہ گزرا، عرب قحط سے گزر رہا تھا، عرب میں سوکھا پڑا ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 2 سے 2.5 سال کے درمیان تھی،
अरब में कहत था, पानी नहीं बरस रहा था। अरब उस वक्त उस दौरे जहालत से गुजर रहा था कि उस वक्त अर्ज़े ज़मीन पर दुनिया में अरब जैसा घटिया कल्चर कहीं और का नहीं था। घटिया कल्चर में मरकजियत की हैसियत रखता था और वो मोहतरम जगह जिसे काबे मुनव्वरा कहा जाता है, उसमें 360 बुत खड़े हो चुके थे। हर कबीले के अलग अलग बुत थे सिवाय इस खानदान के कि जिसमें नूर मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मौला अली का नूर मुज़य्यन आ रहा था। उस खानदान को छोड़कर बाकी सब लपेट में आ चुके थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो दुआ, जब काबे की तामीर आप कर रहे थे, उस वक्त आपने अल्लाह से एक दुआ की थी, या अल्लाह मेरी नस्ल में, अरब के अंदर आप दुआ कर रहे थे काबे की तामीर के वक्त, कि या अल्लाह मेरी नस्ल में एक नस्ल हमेशा उम्मत इस्लाम पर बाकी रखना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दुआ को दवाम बख्शा और इज्जत बख्शी कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब तक और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मौला अली तक एक भी लड़ी इसमें जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर मुकद्दस मुंतकिल होता रहा, ना उनके आबा बाप गुमराही और कुफ्र में मुब्तला रहे, ना उनकी माएँ इस चीज में इन्वॉल्व रही। अल्लाह ने अपने खास फज़ल और इनायत से उस खानदान के नस्ल के जद को 2500 साल तक महफूज मासूम अली खदा रखा, एकदम मासूम रखा। ये वो बातें हैं जिसको दिल कबूल करता है, जिसको ये न कबूल हो उसके लिए राइट है कि वो बात माने या न माने। लेकिन कुर्बानियां आगे इस्लाम पर जिस तरीके से उस खानदान के लोगों ने निशावर की, वो कुर्बानियां दलील की मोहताज नहीं है। किरदार हमेशा अपनी दलील खुद बनाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन मुबारक 2 साल का अरब में कहत पड़ा। सारे अरब के कबीले के सरदार अपने अपने बुत के पास गए, सिफारिश की, करते करते थक गए, बारिश नहीं आ रही थी। लोगों ने आपस में मशवरा किया। उस वक्त चूंकि हज़रत अबू तालिब मुतवल्ली काबा थे, उन लोगों ने कहा कि हम लोग इतना कुछ कर चुके, बारिश नहीं आ रही, आओ चलते हैं अबू तालिब के पास। जब वो लोग हज़रत अबू तालिब के पास आए तो आपने कहा, लोगों की बात को सुना और आपने जवाब दिया। आपने आसमान की तरफ देखा, धूप बहुत तेज थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर आपने नजर डाली। आपने कहा थोड़ा धूप कम हो जाए, उसके बाद हम कुछ करते हैं। यहीं पर वो नुक्ता है जो सोचने पर मजबूर करता है कि वो अरब के वो लोग जब परेशानी में मुब्तला हुए तो उनकी रग़बत, उनकी तवज्जो बुताने हरम की तरफ था। और जब ये बात हज़रत अबू तालिब के पास गई तो आपकी तवज्जो और आपका मम्मा हुजूर कायनात हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर थी। ये इस बात का साफ इशारा दे रही थी और निशानदेही कर रही थी कि इसमें बड़े राज हैं, इसमें बड़े राज हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम, हज़रत अबू तालिब जब धूप कम हुई, एक रवायत में है कि आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली पकड़ी, दूसरी में है कि आपने गोद में उठाया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर काबा मुनव्वरा आप पहुंचे और काबा मुनव्वरा की दीवार मुबारक से आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ मुबारक को मस किया। और उस वक्त आपने हाथ उठा दिया और हज़रत अबू तालिब ने कहा, या अल्लाह तू रहमान और रहीम है, तू इस बच्चे के वसीले से बारिश नाजिल फरमा। 3 बार आपने कहा। 3 बार कहने में मक्के के ऊपर बादल आता है और बादल इस तरीके से आता है कि पानी साथ में लेके आता है, बारिश शुरू हो जाती है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी।
बुलंद तरीन सब मिलके दरूद शरीफ सलवात पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। जब ये मंजर हज़रत अबू तालिब ने देखा, दुआ मकबूल बारगाह हुई, आपका मन मचला, आपने कहा और लाम के काफिये में आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नात के अशार कहना शुरू किए। कसीदा लामिया के नाम से वो आज भी मशहूर है, और आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में आपने कसीदा लामिया में 100 अशार आपने लिखा। और उस मौके पर जो आपने अशार कहा वो बुखारी शरीफ में मौजूद है, जिसका तर्जुमा ये है, आपने जब बारिश का नुज़ूल देखा तो आपने लिखा, आए मेरे प्यारे भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आए मेरे प्यारे भतीजे मोहम्मद, आपका चेहरा इतना बाबरकत है कि अल्लाह पाक आपके चेहरे के तबस्सुम से बारिश ले आता है। आपका चेहरा इतना बाबरकत है कि आपके चेहरे के तबस्सुम से अल्लाह बारिश नाज़िल फरमाता है। आप यतीम और मिस्कीन के मददगार, बेवाओं के इस्मत के मुहाफिज हैं। याद रहे कि हज़रत अबू तालिब की उम्र मुबारक काफी हो चुकी है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 2.5 साल की है, और हज़रत अबू तालिब जो बात कह रहे हैं वो कब के लिए कह रहे हैं कि आप यतीम और मिस्कीन के मददगार और बेवाओं की इस्मत के मुहाफिज हैं। आपको बनु हाशिम की भूखी तड़पती औलादें हमेशा घेरे रहती है, इसलिए कि आप ही के दामन में सारी रहमतें हैं और बरकतें। अल्लाह अल्लाह अकबर। वो अबू तालिब, वो दादा अब्दुल मुत्तलिब, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल के बाद लोगों ने देखा, ये 2 हस्तियां कायनात में ऐसी हैं जो ऐलान नबूवत से नबूवत की गवाही दे रही थी। एक हस्ते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब, और एक आपके चचा हस्ते अबू तालिब। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने, और जब वो चीजें कही, तमन्ना इस कदर लबरेज थी, नुक्ता इस बात का है कि हज़रत अबू तालिब को यह फिक्र ही नहीं थी कि लोग मुझे जाने कि मैं मुसलमान हूँ। उनकी एक ही फिक्र थी, मेरा भतीजा बचेगा कैसे, लोगों की तलवारों की जद से कैसे महफूज रहेगा। इसी जतन में गोसा रहे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत पर मामूर रहे। वो शहर अबी तालिब हो, 3 साल का वो सोशल बाइकाट तारीख इस्लाम पर दर्ज है कि जहां पर हज़रत अबू तालिब अपने बच्चों फकीरों के साथ आप सूखे पत्ते चबाते रहे, अपने हर भतीजे अपने बच्चों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत पर मामूर किए। कभी हमजा को सुनाते, कभी जाफर को, कभी अली को, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर बदलते रहते। उन्हें तो एक ही फिक्र थी कि मेरा मोहम्मद बाकी रहे, बाकी सब कुर्बान हो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं, बाकी सिर्फ मोहम्मद रहे। उन्हें ये था ही नहीं कि लोग मुझे काफिर कहेंगे या मोमिन कहेंगे, उन्हें तो सिर्फ ये था कि रज़ाए इलाही, या अल्लाह तू चाहता है कि मैं कुर्बान हो जाऊं, मेरी आँख कुर्बान हो जाए, या अल्लाह कबूल फरमा, या अल्लाह कबूल फरमा। और आपने कसीदे में आगे आपने लिखा, अभी तो हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान की हिफाजत के लिए अभी हमने तलवारें नहीं उठाई, अभी हमने बर्छियां नहीं उठाएंगी। वो वक्त आएगा कि हम तलवारें भी उठाएंगे, हम बर्छियां भी उठाएंगे, हम अपनी गर्दनें भी हाजिर करेंगे। अल्लाह ने वो तौफीक बख्शी, वो इज्जत बख्शी हज़रत अबू तालिब की कि करबला की तारीख के वक्त को आप पढ़ें, जितनी औलादे बनु हाशिम से करबला की धरती पर कत्ल हुई, वो सब अबू तालिब की औलाद है, या पोते हैं, या पोतियां हैं, या नवासे हैं, या नवासियां हैं, या बेटे हैं। या अल्लाह, उस हस्ती नाशा जिसकी वजह से इस्लाम की सारी खूबसूरती आज पूरे वर्ल्ड में किसी का कैरेक्टर अहिंसावादी के तौर पर अगर जाना और समझा जाता है, पूरे वर्ल्ड पर कल्चर के मामले में अगर कोई कैरेक्टर माना जाता है, तो पूरी कायनात में एक ही नाम आता है,
है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नाम है, जिनका हवाला देख के लोग लिखते हैं। यहाँ तक कि महात्मा गांधी ने लिखा कि अगर हुसैन जैसे 72 साथी मेरे होते तो मैं एक दिन में हिंदुस्तान को आजाद कर लेता। ये किसके पोते हैं? हैरानी होती है उस सोच पर, इस घटिया मेंटेलिटी पर कि जब नाना इमामुल अंबिया और दादा माज़अल्लाह उसे दूसरे रूप में बोलते हैं। ये हज़रत अबू तालिब पर मोहताज नहीं है, ये हुसैन पर मुद्दा आ जाता है कि आपके इज्जत की तारीफ क्या है। अल्लाह उन लोगों से बचाए जिन लोगों ने इस मिशन को हवा देने की कोशिश की है। हालांकि पहले के जितने भी उलमा गुजरे, वो पहली सदी में हो या तीसरी सदी में हो, ये इमाम अबू हनीफा के दौर में हो या बाद में इमाम हम्मद के दौर में हो या दीगर इमाम स्यूती के दौर में हो या किसी भी दौर में किसी ने लिखा है, लेकिन ज्यादातर लोगों ने हज़रत अबू तालिब के मामले में खामोशी को तरजीह दी है और हमेशा फज़ाइल और मनाक़िब को तरजीह दिया। यही वजह है कि अहले सुन्नत की मोहतर किताबों में हज़रत अबू तालिब के फज़ाइल और मनाक़िब मौजूद हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। सुभान अल्लाह। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नजर आ रहा है हरम गौसे आज़म, नजर आ रहा है हरम गौसे आज़म, नजर आ रहा है, नजर आ रहा है हरम गौसे आज़म, तुम्हारा है ये भी करम गौसे आज़म, तुम्हारा है ये भी करम गौसे आज़म। और ज़मीं का फलक है हुकूमत तुम्हारी, ज़मीं का फलक है हुकूमत तुम्हारी, ज़मीं का मलक, ज़मीं का फलक हुकूमत तुम्हारी, है तेरा है ये जाओ है शम गौसे आज़म, तेरा है ये जाओ है शम गौसे आज़म, नजर आ रहा है हरम गौसे आज़म। और लिया अपने कांधे पे कुल औलिया ने, लिया अपने कांधे पे कुल औलिया ने, लिया अपने कांधे पे कुल औलिया ने, तेरा वहाँ क्या है कदम गौसे आज़म, तेरा वहाँ क्या है कदम गौसे आज़म, नजर आ रहा है हरम गौसे आज़म। और सफीना किनारे तुम्हीं ने लगाया, सफीना किनारे तुम्हीं ने लगाया, सफीना किनारे तुम्हीं ने लगाया, तेरी ज़ात है मौला
आजम नजर आ रहा है हरम गौसे आजम और किया छोड़ दे पे वली बन के लौटा किया छोड़ दे पे वली बन के लौटा किया छोड़ दे पे वली बन के लौटा करामत तेरी ये अहम गौसे आजम करामत तेरी ये अहम गौसे आजम नजर आ रहा है करम गौसे आजम तुम्हारा ये भी तुम्हारा है ये भी करम गौसे आजम माशाअल्लाह बहुत खूब है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद मैं और कहाँ जिक्र ईमान अबू तालिब मैं और कहाँ जिक्र ईमान अबू तालिब कुरान से पूछो क्या है ईमान अबू तालिब शान अबू तालिब से ताकर वो बना दम शान अबू तालिब से ताकर वो बना दम बेटों ने निभाया है पैमाने अबू तालिब बेटों ने निभाया है पैमाने अबू तालिब नारा कोई है दर का जैसे ही लगाता है जैसे ही लगाता है नारा कोई है दर का लगता है मुनाफिक को पैगाम अबू तालिब लगता है मुनाफिक को क्या शेख पे गुज़री जो लिखा हुआ देखा क्या शेख पे गुज़री जो लिखा हुआ देखा दरवाज़े जन्नत पे ऐवान अबू तालिब दरवाज़े जन्नत पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सल्लल्लाहु अलैहि नबीना मौलाना मुहम्मद बातिक वसल्लम सलातु वस्सलाम अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कि ये नाज़ ये अंदाज़ ये नाज़ ये अंदाज़ हमारे नहीं होते ये नाज़ ये अंदाज़ कि ये नाज़ ये अंदाज़ हमारे नहीं होते
کہ جھولی میں اگر آپ کے جھولی میں اگر آپ کے تو